हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मित। तो यहाँ पे हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। एक सेकंड। ये बॉन्ड यील्ड है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको सो मार्केट कहाँ ओपन हुआ? 9:15, ठीक है। उसके बाद ये वॉल्यूम कैंडल, हाई वॉल्यूम कैंडल है। तो सप्लाई, ओके, दिस इज सप्लाई जोन। नाउ आई हैव टू वेट to see what is happening around my supply zone. So when I see volume is decreasing from this point, okay, and volume is and price is also decreasing. So this is called buyer's auction. Okay, note it. This is buyer auction. It means buyers are ready to buy the price in the market. Okay. Now suppose what you see here. When I mark the buyer's auction, see volume. This candle, this 10:05. This break this candle, my line, buyer's option line here. And also this is a bullishness goes above my supply. But it created here. So I can enter because my SL is small. Okay, I will enter here, SL here. And what I teach you that when you see a range like this, so mark the low to high. Where I am 50 above now. See here. So what confluences this buyer's auction? Second confluence I am above 50. Third confluence I am above supply zone. Then comes the role of yield. Now see yield. What happened? Yield is a leading indicator. It is saying that price is going up. So that's why I taken a one lot trade here at that and book around 20 points. 20 points in this candle and I exit here at the 50 minus 50. Now the problem with the thinking that I also got it wrong first when I see this in 15 minutes. When this candle breaks down here, I thought that this might be a selling. So I will mark the low to high. I will mark 50. So if I want to sell the market from here and my SL is here. So here, even if I am wrong, I did not see all those things that I told you, but market gives me opportunity to break even here. Yes. So this is not important that you are always be right. And when you see things later, like I see after here, when price was consolidating, so I told you that whenever I make a order block, what I will be more focused about price should not consolidate. So if this was your selling order block, this was selling order block and what price is doing? Consolidating.
So that was I don't like, and although I am given you entry here, yes. So even if I am wrong, I am selling high. So this is not possible for the price to like first travel this much distance and then again travel that much distance. It will always come back again for creating a liquidity. This is market is creating liquidity here. So even if I am wrong here, I exit my trade and I will think about this again with the cool mind that what is I am doing wrong here. So then I will look at this volume down, price down, and then I goes for lower time frame and then see other things. So this is the way how to trade. But suppose you miss all this entry and you come in the market at 1040. Now what you see? You are seeing that okay, when market is open at 920, some of the buyers enter in the market. Here's also strong candle. What they are trying to do, they are trying to clear the seller's stop here. So even if I miss all this setup, suppose I am here. So what I will think that okay, I am in this total zone. So from seeing low to seeing high. And what is this? No, FAG leave. FAG is crap. 50, okay. So when price is rejecting 50 first here, see, reject, reject, strongly reject, and a volume is high, and you can also, can you see the buyer's auction? See the buyer's auction. Price is decreasing and volume from that point to this point. And what this is called stopping volume. So when stopping volume come into the market, for it gives me a confirmation. It is above 50 confirmation. Form a order block here. So I can enter in the market where here na here. And if I am entering, so what will be my target? Last candle. See, from this point to this point, this is a 1:1. Problem with the option is options are now not like moving very fast. You will only get 10 point 20 points in bank nifty from for this move, and for nifty you will get 4 points. So if you do this with the, suppose you are doing with the future, so what was that? 36,540 से और 36,590 40 पॉइंट मतलब 4,000 रुपीज. So future is good in present case of Indian market, because I think that somebody put some AI in the options that it not like move so fast. If you see this candle, when I trade market in 2020, and when this kind of candle happen, no, so my option goes from how much? Who can you guess that?
This candle will give you how much point in option? हाँ, आराम से 30,000 के अराउंड प्रॉफिट यहाँ बुक होता था मेरा। बट अगर ये कौन सा है, 10, 30, 31 अगस्त, अगर इसको तुम अपने उसमें देखो, काइट काइट है तुम्हारे पास ना, उसमें देखो जरा इसको क्या है। 36, 400 देखना, 10, 30 से कितना चेंज हुआ है। 40 से 96, 50 पॉइंट। ये ओके, तो 100 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, एंड बिफोर इट शुड बी 200 और 300, like controlling the options premium. So now if you miss this entry, I sold put wait और exit sir, प्रमोद जी ने कुछ सोल्ड किया 36,494। वालों में डांस कभी से देखो, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, प्राइस और वॉल्यूम स्टडी है, ऑर्डर ब्लॉक है 50 के ऊपर है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है, इस स्विंग के नीचे। तो इस रेंज में आई गेस अभी एक बार और आ सकता है मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने, फिर हो सकता है ऊपर जाए, फिर कंसोलिडेट करें, क्योंकि ये स्टॉप तो क्लियर करना है इसको। यहाँ से टारगेट अगर देखा जाए तो -50 अचीव हुआ है। हम्म, हम्म। मैं इनको क्या बोलूं कि ट्रेड होल्ड करो कि ना करो, क्योंकि ट्रेड तो मेरा बेसिकली यहाँ से था ना, यहाँ से था मेरा ट्रेड, और मेरा एग्जिट यहाँ पे था। अब मैं होल्ड करने को बोलूं कि क्या करने का बोलूं इनको, देखो एग्जिट लिया और प्राइस ड्रॉप हो गया तो। हम्म, हमको लगता है कि धनपाल सर ने शॉर्ट किया था मार्केट, और एग्जिट हो लिए। हम क्या, चलो बढ़िया, एक दो कॉल। हम्म, एक दो कॉल तो
वो भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, देखो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ दिया था, ठीक। और एंट्री यहाँ यहाँ का एंट्री दी थी मैंने। ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है ना, अगर स्टॉप लॉस डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे लॉस लेके निकलोगे, जबकि मार्केट तुमको पूरा पॉइंट देगा, समय देगा कि निकल जाओ। क्योंकि हम हाई पे बेच रहे हैं ना, यहाँ पे बेच रहे हैं इस पूरी रेंज में, यहाँ पे बेच रहे हैं मार्केट को, जो कि मार्केट काफी स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट स्ट्रेट चला जाए, मतलब यू स्ट्रक्चर कहीं देखोगे, उल्टा यू बनता है, उल्टा यू ये। लेकिन सीधा यू जल्दी नहीं बनता है, देखो सीधा यू जल्दी बने, यहाँ पे बना है। लेकिन ये रेयर है क्योंकि मार्केट ओपनिंग टाइम में उसके पास वॉल्यूम था तो क्लियर कर दिया। लेकिन सीधा यू बनता नहीं है जल्दी, देखो यहाँ पे बना, रिजेक्ट होकर नीचे। हम्म, आजकल निफ्टी पे फोकस नहीं है मेरा। कल मैंने ट्रेड किया था फॉरेक्स। यहाँ पे देखो साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है, हर चीज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे क्रिएट किया है सेलिंग, तो ये जो बायर्स है ना, ये बायर्स इनको काटने जरूर जाएंगे, और ये सेलर्स स्टॉप कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर ना आ पाए। तो अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि कौन कंप्रेस हो रहा है, मतलब सेलर्स के स्टॉप हिट हो रहे हैं कि बायर्स के। सेलर्स के स्टॉप हिट हो रहे हैं, इसका मतलब कि सेलर्स जो हैं वो बायर्स बनने जा रहे हैं। लेकिन यहीं पे इम्पोर्टेंस है यील्ड का। यील्ड क्या है, इंक्रीज हो रही है। अगर यील्ड में देखो तो ये भी एक यील्ड यील्ड का ऑर्डर ब्लॉक टाइप का है। तो जैसे yield इसके ऊपर जाएगी, ये हिट कर देगा इसका। प्रॉब्लम यही है कि धनपाल सर सोच रहे होंगे कि अगर मैंने एंट्री दी है तो लेना ही है, हो सकता है कि ज्यादा लॉट से किया हूँ भाई, एक लॉट से करो ना, कितना लॉस दे दोगे। नीडेड टू ब्रेक रेंज। कौन सी रेंज में चलेगा ये। ये हील्ड वो है ना, मतलब रिस्क ऑन है, रिस्क मतलब हील्ड जब हाई है तो मतलब कि रिस्क है, पैसा लगाने में रिस्क है, ठीक है। यील्ड जब लो है तो रिस्क ऑफ है, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सुने हो। तो जब रिस्क, देखो यहाँ पे क्या था, यील्ड क्या थी, लो थी, ठीक है। और तो जब रिस्क नहीं है तो लोग खरीदे, और यील्ड क्या है, लीडिंग इंडिकेटर है। देखो प्राइस यहाँ पे ओपन होके भागा, लेकिन यील्ड जो है पहले बता दिया ना, ना सेम थिंग इज हियर। देखो यील्ड नीचे है, और हम
गेस कर रहे हैं कि मार्केट स्टॉप क्लियर करेगा, तो अगर यील्ड ऊपर नहीं गई इसके ऊपर तो क्या होगा कि स्टॉप रन होगा ये, मतलब स्टॉप क्लियर करके तुरंत नीचे आ जाएगा। देखो यील्ड एकदम डाउन हो गई है, रिस्क ऑफ है। तो रिस्क ऑफ है तो स्टॉपिंग वॉल्यूम जो है, स्टॉपिंग वॉल्यूम नहीं आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे अगर ऐसे देखो वॉल्यूम पर दिखाती है, यहाँ पे ऐसे लाइन बनाओ, ये देखो स्टॉपिंग वॉल्यूम जैसे ही लाइन ब्रेक होगी मतलब स्टॉपिंग वॉल्यूम आ गया सिस्टम में। बट यहाँ से अगर प्राइस देखोगे तो प्राइस अगर लोअर साइड है तो ये सेलर्स ऑप्शन है, मतलब ये डाउन है और ये अप है। अगर ये अप है साइड से तो ये सेलर्स ऑप्शन है, इसका मतलब सेल, बट स्टॉपिंग वॉल्यूम। देखो यील्ड का इफेक्ट देखो, तुम्हारा पूरा एनालिसिस ठीक है बट यील्ड डाउन है ना, तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया था। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया नहीं कोई, जब यील्ड डाउन होने लगी। समझे, मतलब मेरा जो ट्रेड है हमेशा यील्ड के डायरेक्शन में होगा, चाहे मार्केट के एनालिसिस कुछ भी कह रही है। देखो यील्ड डाउन है, डेवलप ट्राई कर रहा है होल्ड करने का प्राइस। लिक्विडिटी इन ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है कि ये देखो लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है इसको। एक इम्पोर्टेंट चीज आती है लिक्विडिटी रिजेक्शन, जैसे कि कल के मार्केट में देखो, देखो यील्ड देखो कितना सही, रिस्क देखो ऑफ है यहाँ तक, उसके बाद यील्ड जो है तुरंत भागी है ऊपर, लीड इंडिकेटर है। ऑर्डर ब्लॉक खोजो, यील्ड ऊपर गई, ऑर्डर ब्लॉक खोजो, एंटर करो पूरा, यहाँ तक तो बनता ही था ना लेना। तो रिजेक्शन, लिक्विडिटी रिजेक्शन, हाँ यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ लिक्विडिटी है सिंक के नीचे, ठीक। और लिक्विडिटी लेने के बाद देखो मार्केट कैसे रिजेक्ट हुआ है, इसका मतलब कि या तो मार्केट लिक्विडिटी को एक्सेप्ट करता है और नीचे की लिक्विडिटी टारगेट करता है, या तो मार्केट लिक्विडिटी रिजेक्ट करता है जैसे यहाँ पे हुआ है और ऊपर की लिक्विडिटी टारगेट करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, अगर ये लिक्विडिटी है यहाँ तक
तो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट किया है। और ऊपर के लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है, तो अगर देखोगे तो बॉडी के ऊपर देखा, यहाँ लिया ना लिक्विडिटी, फिर से अब नई लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ। अब यहाँ रिजेक्ट होगा अगर मार्केट, तो फिर ये पूरा क्लियर कर देगा। फर्स्ट टाइम तो रिजेक्ट होगा। मार्केट में वॉल्यूम देखना है, फ्रैक्टल, फ्रैक्टल का भी एक रोल है। देखो फ्रैक्टल जो है इस कैंडल पे हाई लो दोनों है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मार्केट मेकर है वो क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि प्राइस जो है पुश हो। वो इस रेंज में कैसे ड्रॉ होता है ये, इस रेंज में प्राइस को होल्ड कर रहे हैं। इसमें इस समय मालूम है मार्केट में पैसा जो है मार्केट मेकर बना रहा है इस रेंज में। और जिस साइड इस रेंज को ब्रेक करके जाएगा मार्केट, उस साइड बहुत स्पीड में जाएगा और ऊपर जा रहा है। ये डाउन में, लेकिन तो मेरा ट्रेड नहीं है ये। ये प्रीमियम है तुम्हारे पास, प्रीमियम लेना पड़ेगा। एक इसका शायद शॉर्टकट कुछ देखते हैं। अच्छा ये में होता है क्या, ये में ओपन करो, इनपुट में सोर्स में जाओ और आई एन 10y माइनस, माइनस नहीं है ये डैश है, आई एन 02 क्लोज, ये ऐड करके लेंथ 0 कर लो। इनपुट नहीं, 0 कर लो। अच्छा 1 होगा, 1 कर दो, आ गया एकदम यील्ड पे। देखो हो रहा है तुम्हारे में। अगर अलग अलग हो रहा है तो आई एन 10y कर लो, आई एन 10y। ऐसे होगा ना, आई एन 10y डैश, आई डैश स्पेस आई एन 02y, एक सेकंड, डैश इधर भी स्पेस होगा, माइनस में। ये तुम सर्च कर लेना उस पे, गूगल पे रहता है ऐड कर, ये शायद स्पेस लगाते हैं तो आता है इससे। अभी मैंने खुद यील्ड नई नई सीखी है तो
अगर ना हो तो क्या करना कि IN10Y ले लो। और IN02Y ले लो। तो ठीक है, और इसको हाइड कर दो। IN10, ये। तो इसमें ट्रेड कैसे लेना है कि जब 10 ईयर यील्ड जो है, 10 ईयर के अपोजिट लेना है, 2 ईयर के सपोर्ट में लेना है। देखो 10 ईयर ऊपर है ठीक है, लेकिन 2 ईयर भी ऊपर जानी चाहिए। मतलब 10 के अपोजिट 2 के सपोर्ट में। देखो यहाँ पे देखो, 2 के सपोर्ट में ले रहे हैं ट्रेड। दिस इज 10Y। ये कॉन्सेप्ट है यील्ड में, तुम्हें बाद में क्लियर कर दूंगा क्योंकि मुझे भी इसमें कुछ और भी चीज जाननी है कि, लेकिन वो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बिना काम नहीं चाहिए क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है। अगर प्रीमियम वर्जन ले लोगे तो कंपेयर में जाके, ये है IN010Y, ये माइनस है एक्चुअली। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी ऐड है इसलिए नहीं दिखा रहा था जो मैं डाल सकता हूँ। IN10Y, इसको ऐसे इंटर करते हैं तो वो आ जाता है कि मतलब अगर प्रीमियम अकाउंट है तो ऐड हो जाता है, इसे देखो ऐड हो गया। और यील्ड जो है काफी हद तक मुझे इस कंसोलिडेशन से बचा लिया ना। देखो मार्केट में प्राइस देखो, यील्ड देखो।
हेलो। देखो प्राइस जो है 50 को सपोर्ट लिया है, यील्ड भी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे अगर मान लो तुम यहाँ पे मार्केट में एंटर किए और ये कंसोलिडेशन से तुम बच गए यील्ड के कारण, क्योंकि यील्ड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो अब यील्ड जो है आई गेस डायरेक्शन में आती होगी। और ये क्या है, इंस्टीट्यूशंस स्पॉन्सरशिप है, मतलब तुम्हारे ट्रेड के पीछे कौन है, इंस्टीट्यूशंस। वो बाई कर रहे हैं, वो बाई कर रहे हैं। तो जब वो बाई कर रहे हैं हम बाई करेंगे। और कहाँ तक देख सकते हो कि 10, मतलब एक फिक्स टाइम बनाओ कि इसके पहले मार्केट में एंटर नहीं करेंगे। तो मेरा फिक्स टाइम जो है 10:15 है। मैं 10:15 तक मार्केट देखता हूँ कि वो क्या रहा है एक्चुअली। तो ये जो है ये ट्रेड बच गया, ये ट्रेड। फिर जब मैंने देखा कि ये हाँ ये हो रहा है तो बाई कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे है, क्योंकि मार्केट में दो टाइमिंग है, एक 10:15 और एक 2:15। ठीक है। तो जब भी मार्केट मेकर कुछ करना चाहेंगे तो या तो ये यहाँ पे कुछ करेंगे या तो यहाँ कुछ करेंगे। और बीच का ये जो है एरिया, यहाँ पे कमर्शियल बायर्स ट्रेडर्स अपना काम कर रहे हैं। तो टारगेट सपोज कर रहे हैं कि हिट होगा, लेकिन अगर इस रेंज को देखेंगे तो इसका टारगेट कहाँ बता रहा है, यहाँ पे -1 यहाँ बता रहा है और -50 यहाँ बता रहा है। तो पार्शियल पहला -50 पे कर लेंगे और दूसरा पार्शियल यहाँ पे कर लेंगे। सिंपल। अगर यहाँ पे एंटर करना था तो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है इजी 50 पे, है ना। मार्केट ऊपर है 50 से। ठीक है। और कहाँ जा रहा है, यहाँ पे क्या है। अरे बाप रे तो मेरे को ट्रेड काटना पड़ेगा ठीक है। तो सेकेंड एंट्री मेरी कहाँ थी, यहाँ पे। और एक लॉट से इजी 800 700 रुपये बनता है यार, क्या मतलब है, क्यों टेंशन लेना है ना। प्रमोद को बोल ट्रेड एग्जिट करो, लेकिन आ, सुनेगा नहीं वैसे ये। प्रमोद 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 प्रमोद। तो अब क्या हुआ मालूम है। अब ये मोमो ट्रेडर है। मोमो ट्रेडर मतलब ऐसे ट्रेडर जो कि डायरेक्शन बायस होते हैं, लेकिन मार्केट में एंट्री लेट लेते हैं, मतलब इनको भी कंफर्मेशन चाहिए होती है। ये भी बड़े लेवल पे प्रॉप फॉर्म में देखो कैसे बोला तुरंत। तो क्या हुआ कि जब ये मोमो ट्रेडर्स ने देखा कि बिहाइंड क्या है, इंस्टीट्यूशंस स्पॉन्सरशिप है। ओके। मतलब कि इंस्टीट्यूशंस या फिर एल्गो बोल लो, कि एल्गो जो है अप है, यहाँ पे इन्होंने देखा और वॉल्यूम देखा कि कमर्शियल ट्रेडर बाइंग कर रहे हैं। ओके। उसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पे मार्केट मेकर जो है प्राइस को होल्ड कर रहे हैं और इस रेंज में कंसोलिडेशन कर रहे हैं। और मैं कैसे बच गया इस रेंज से, यील्ड से। ओके। यील्ड ने बचा, क्योंकि यील्ड ने बोला कि मैं डायरेक्शन में नहीं हूँ तुम्हारे। तो मैंने बोला कि ठीक है, यील्ड जब डायरेक्शन में आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। और ये मेरी रेंज थी और ये मेरा 50 है। मतलब कितना इजी है ना, केवल आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट। हाँ, आईसीटी एक कॉन्सेप्ट और वो
नाउ सी द टारगेट। कहाँ तक हिट किया इसने? 50। पहला पहला जो है एग्जिट 50 पे है, लेकिन देखो ये तुम्हारी एग्जिट नहीं है एक्चुअली। यहाँ से ये लोग जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि देखो यहाँ पे रियल बायर्स, मतलब जो रियल्स है, मतलब एक्चुअली में जो मार्केट पुश कर सकते हैं, तो ये देखो कितने चुपके से पोजीशन बनाए हैं, कितने चुपके से, कोई जान नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखो, नॉर्मल नॉर्मल वॉल्यूम में पोजीशन बनती है इनकी, लो वॉल्यूम में कैंडल्स हाई रहेंगी, और टाइम देखोगे तो 10-15 के पहले ही रहेगा, या फिर उसके डाउन रहेगा। तो ये जो ट्रेडर हैं, मार्केट मेकर, ये जो है प्राइस को पुश करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किए इस रेंज में। उसके बाद जो मोमो ट्रेडर थे, ये पूरे मोमो ट्रेडर ने देखा कि प्राइस जो है अभी भी यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो ये लोग क्या किए, इसको चेस किए। मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको चेस करना पड़ता है प्राइस को। ये और ये जो सडन मूवमेंट एक साइड होती है, ये मोमो ट्रेडर चाहते हैं मार्केट में। नाउ तो हमको जो है मोमो ट्रेडर बनना है। हमको पीछे देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। मोमो मतलब मोमेंटम ट्रेडर। और जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो एक्चुअली में मार्केट में अगर तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तो कितनी एंट्री मिली? एक यहाँ, और दूसरी यहाँ, और तीसरी। सो 3 एंट्री, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट के टारगेट, 20 पॉइंट पॉइंट का टारगेट रखते हैं। हिट होता है। हाँ, और अगर यहाँ पे एंट्री मिल गई तुमको, और तुम सपोज 4-5 लॉट से एंट्री किए हो, आराम से एक लॉट जो है बॉडी पे निकाल दिए, या फिर 2 लॉट निकाल दिए। अब होल्ड किए हो कि चलो, पहले स्टॉप लॉस कहाँ था? यहाँ था। अब स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ गया। इसका फायदा क्या है कि जब ये मूव, तो तुम्हारी हाफ क्वांटिटी बुक हो गई। अगर अब मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में जाएगा, सपोज जैसे कल ट्रेंडिंग डे था, तो तुम्हारे पास मतलब बहुत पैसा बनेगा। तो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक तुमने यहाँ देखा, तो अब स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ। हाँ। अब थर्ड ऑर्डर ब्लॉक तुमने देखा, मोमो देखा, तुमने बोला कि चलो यहाँ तक तो पैसा लूंगा ही। ठीक है। और वॉल्यूम क्या कर रहा है? देखो, अभी भी बायर्स ऑप्शन है ना ये। सेलर्स ऑप्शन मतलब, देखो यार ये सब समझने में मतलब मैंने सालों लगा दिए, और तुमको मैं सूरत बता दे रहा हूँ। देखो ये बायर्स ऑप्शन है, ठीक है, ये बायर्स ऑप्शन है। मतलब सेम डायरेक्शन, वॉल्यूम प्राइस सेम डायरेक्शन, बायर्स ऑप्शन। और मान लो प्राइस अप हो रहा है और वॉल्यूम डाउन हो रहा है, तो सेलर ऑप्शन। और मान लो प्राइस डाउन हो रहा है और वॉल्यूम अप हो रहा है, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल है, मतलब ये तुमने देखा तो ये होगा ही। ये कंफर्मेशन है, समझ गए ना? मतलब एक ट्रेड लेने के पीछे 3 कंफर्मेशन चाहिए। एक ऑर्डर ब्लॉक से ले लिया, एक 50 से ले लिया, एक वॉल्यूम से ले लिया, और एक बॉन्ड से ले लिया। तो एक ट्रेड पे 4 कंफर्मेशन है, आराम से ट्रेड ले। क्या दिक्कत है?
लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने जितना स्ट्रगल किया फिर को समझने में वो करना पड़ेगा। मैं वो A to Z नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि देखो, यहाँ तो समझ में आ गया कि चलो यहाँ तुम पनिश हो गए तो ये पोजीशन लेके अपना ब्रेक इवन होके और प्रॉफिट होके निकल गए। लेकिन प्राइस का स्ट्रक्चर हर बार एक जैसा नहीं होगा ना। अब यहाँ पे क्या हुआ था कल, ये कल का मार्केट है 30 अगस्त। अगर तुम सपोज ये वॉल्यूम देखना भूल गए और यहाँ सप्लाई बनाना भूल गए तो कोई आइडिया ही नहीं मिलेगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि मार्केट क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। कोई एंट्री का आइडिया है इसमें नहीं है। और देखो यहाँ से वॉल्यूम अगर देखें तो यहाँ कहीं आ रहा है, ये इस लाइन पे क्या आ रहा है, स्टॉपिंग वॉल्यूम। मतलब स्टॉपिंग वॉल्यूम मतलब कि अब ट्रेड लिया जा सकता है। तो वॉल्यूम जो है पहले कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन अगर टाइम देखो तो अगर मैं बोला कि चलो 10:30 तक मार्केट देखो, हाँ, तो अब देखना ये जो लाइन है, ये वाली, ये थी स्टॉपिंग वॉल्यूम। देखा, और स्टॉपिंग वॉल्यूम जो है कितना बढ़िया फॉर्म हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के पास। यहाँ 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 ये फिर पूरा ऑर्डर ब्लॉक ये ले लो। मतलब इजी है मार्केट, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम किस टाइम पे मार्केट को देखते हो। सपोज यहाँ पे देखो और हड़बड़ी में देख लिया कि मार्केट तो भाग रहा है, एंट्री ना मिस हो जाए। यहाँ पे देख लिया सप्लाई, एंट्री मिस हो जाएगी, एंट्री मिस हो जाएगी। यहाँ भी एंट्री नहीं है, देखो ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट ही नहीं किया, टेस्ट ही नहीं किया। इसको कोई मतलब ही नहीं है यहाँ की लिक्विडिटी से। और सपोज तुम सोचो कि मार्केट जो है ये लिक्विडिटी टारगेट करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देखो ना, ये वॉल्यूम, ये 1 2 3, ये टोटल, ये कौन है, रियल कमर्शियल बायर्स हैं। ये अपनी लिक्विडिटी मार्केट को देंगे, ये क्या करेंगे कि प्राइस के लेग के बीच में एक लिक्विडिटी क्रिएट करके ये लिक्विडिटी दे देंगे, क्योंकि अब प्राइस इनको चाहिए। और यहाँ पे ये लोग कौन है, जो कि हमको बनना है। देखो वॉल्यूम जो है बोल रहा है कि प्राइस अप है ना। और स्टॉप लॉस मूव कराने का कितना बढ़िया बेनिफिट है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे है। यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि मार्केट क्या करता है कि लिक्विडिटी क्रिएट करता है बिटवीन द स्विंग्स। हो सकता है कि ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहा हो, तुम यहीं ला के अपना स्टॉप लॉस रख दिए, है ना। इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा एक स्विंग दूर रखना है। तो अब यहाँ पे एंट्री लेने का कोई मतलब है जब यहाँ पे एक बार ऑर्डर ब्लॉक जो है अपना जॉब कंप्लीट कर चुका है ना। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक अपना जॉब जो है यहाँ पे कंप्लीट किया, यहाँ पे कंप्लीट किया, यहाँ पे कंप्लीट किया। कितना ऑर्डर दे, देखो कब तक होल्ड करता है ये। उसके बाद बहुत अच्छी टेक्निक है कि जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या है, 15 मतलब 2 बजे के बाद देखो क्या हुआ। 14 40, 2 25, 14 15, ठीक। ये मालूम है क्या है, 2:15 के बाद कमर्शियल ट्रेडर इंटर किए मार्केट में। वो देखे कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो वो सोचे कि पहला तो मार्केट मेकर क्या करेंगे कि जो लोग यहाँ तक स्टॉप लॉस अपना मूव करा रहे थे इनको बाहर कर दिए यहाँ तक, है ना, कि चलो भाई तुम भी बाहर हो। उसके बाद क्या किए, ये जो पोजीशंस है ये कमर्शियल ट्रेडर्स हमेशा मार्केट जब क्लोज होता है
तब डील करना पसंद करते हैं वो लोग। तो ये लोग क्या किए कि मार्केट में इंटर किए, और जैसे आज ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे एग्जिट ले लिए। तो कमर्शियल ट्रेडर की पोजीशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और जब ये एग्जिट लिए तो ये फॉल मिला हमको, क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट बहुत तेज फॉल होता है। दो कंडीशन में फॉल होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग में, और एक होता है तुम्हारा विड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी। मतलब कि जो मार्केट मेकर है वो क्या बोल रहा है कि अब मैं प्राइस को ऊपर नहीं जाने दूंगा, वो अपनी लिक्विडिटी निकाल लेता है सिस्टम से। तो दो केस में प्राइस जो है डाउन होता है। और ये जो स्विंग है कंफ्यूज करती है ट्रेडर्स को कि डायरेक्शन क्या है। अगर तुमको नहीं पता है कि कमर्शियल्स यहाँ बाई करके यहाँ एग्जिट किए हैं और ये इनकी प्रॉफिट बुकिंग है, तो तुम कंफ्यूज रहोगे। जैसे मेरी पहली कॉल गलत थी, क्योंकि मैं मार्केट को 15 मिनट में देख रहा था, और जब 15 मिनट में देख रहा था तो मेरे को यहाँ पे आइडिया नहीं हुआ। देखो ये क्या है, 9:15, ये वाली कैंडल। और ये क्या की है, देखो 9:15 वाली कैंडल क्या की है, यहाँ का स्टॉप खा गई, यहाँ का भी स्टॉप खा गई। तो इसका मतलब क्या था कि ये विड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी, मार्केट मेकर जो है इसके ऊपर प्राइस को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। जब यहाँ प्राइस नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ला दिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है खरीदो, तब लिक्विडिटी देना शुरू किए और ये लोग खरीदना स्टार्ट किए। और अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काफी रिजेक्शन है। प्रॉब्लम ये है कि देखो जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये रेंज है ना, इस रेंज में जब तक मार्केट 50 के ऊपर है, कभी मार्केट शॉर्ट नहीं करेंगे हम हमेशा मार्केट बाई साइड देखेंगे, ठीक है। रिजेक्ट हो रही है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, लिक्विडिटी ले ये वाली। तो बिगर पिक्चर हमेशा ध्यान में रखना है कि बिगर साइड में क्या हो रहा है। ये इस साइड में बिगर पिक्चर में मार्केट है कहाँ पे, 50 के ऊपर है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी छोड़ दो जब तक 50 के ऊपर है रेंज में। उसके बाद अपना फिबोनाची धीरे से मूव करा लो। अब ये पॉइंट है तुम्हारे पास, ठीक है। अभी क्या है, 50 के ऊपर ही है, अभी भी शॉर्ट नहीं करेंगे, अभी भी मूव करा सकते हो अपना फिबोनाची यहाँ। अभी भी 50 के ऊपर ही है, तो ऐसे धीरे धीरे मूव कराएंगे। और जब ये यहाँ देखो लिक्विडिटी रिजेक्शन है ना, देखो लिक्विडिटी रिजेक्शन है, ऊपर साइड भी लिक्विडिटी रिजेक्शन है। आप देखो प्राइस जो है दो साइड लिक्विडिटी रिजेक्शन में फंसा हुआ है, देखो कितना सही समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, जिस साइड में मूव आएगी स्ट्रांग मूव आएगी, और अगेन क्या किए मार्केट मेकर, होल्ड कर लिए प्राइस के बीच में। अब ये जो पोजीशन है यहाँ पे ये लोग पैसा बनाते हैं मार्केट मेकर। एक्चुअली ये लोग होते क्या है कि ये लोग वन टिक ट्रेडर हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि जो पिछला वॉल्यूम है इसका, इसके 10% पे जो भी प्राइस मिलता है वॉल्यूम पे वो उसको ट्रेड, ये लोग एक्चुअली वॉल्यूम ट्रेडर होते हैं। ये वॉल्यूम के 10% को ट्रेड करते हैं। मतलब ये वॉल्यूम था, यहाँ पे देखो इसका 10% को ट्रेड किया ऊपर तक, ये एग्जिट के लिए। और ये ऐसा हर मिनट करते हैं, मतलब 1 मिनट में इनका एक लॉट का ऑर्डर अगर जाता है तो हर वॉल्यूम पे 10% का प्रॉफिट लेते हैं ये लोग, हर वॉल्यूम पे। ये रिकॉर्ड कर रहे हो लेक्चर, इसको किसी को सेंड मत करना, ये लेक्चर किसी को सेंड मत करना कभी भी। अच्छा खासा रिजेक्शन है, सॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिक्विडिटी कहाँ है, ये लिक्विडिटी है मान लो।
और 50 कहाँ है? 50 यहाँ है। ये तो डिलीट हो गया। अभी रेंज में है, 50 के ऊपर है तो अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे कि लिक्विडिटी रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वॉल्यूम भी देखेंगे कि वॉल्यूम में एक्चुअली हो क्या रहा है। इस पॉइंट से वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। यील्ड क्या बोल रही है? यील्ड ऊपर उठा रही है। यील्ड जो है सेम प्राइस में क्यों नहीं आ रही है? Okay. इसका टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे इस रेंज का? अगर मान लो ब्रेक किया तो यील्ड देखो, प्राइस देखो, वॉल्यूम सपोर्ट में है, 50 के ऊपर है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करना, मतलब ट्रेड लिख के लाइव ट्रेड मत करना, क्योंकि अभी हाँ इसमें और भी चीजें हैं जो तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो समझ में नहीं आएगी। राइट राइट। देखते हैं इसको, कहाँ डिलीवर। वैसे भी वो पहली 15 मिनट वाले कैंडल के वो 50% के ऊपर ही चल रहा है ना मार्केट। शॉर्ट क्यों करेंगे ना, हम क्यों शॉर्ट हाँ करेंगे? वही देखो वही ना। यील्ड देखो, हाँ यील्ड देखो, यील्ड देखो, बोल रही है कि बाई कर लो मुझे। हाँ देखो, जब चाहे तब पैसा बना सकते हैं, लेकिन क्यों बनाना है? मार्केट में डिसिप्लिन के साथ चलना है ना। तीन राइट ऑर्डर यस। डाल दिया दिन के साथ, 8 रुपए हम्म। ले लिया, आराम से घर हाँ बैठो, मजा करो। राइट। अभी एक लॉट के साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने भी ये कॉन्सेप्ट नया ही सीखा है अभी, ज्यादा पुराना नहीं सीखा है ना, इसलिए मैं खुद एक लॉट से करता हूँ। लेकिन जब ये मेरे हाथ में हो जाएगा तो एफटीएमओ करूंगा। अभी देख रहा हम्म। हूँ क्या है कि अपने यहाँ तो खत्म हो गई ना, क्या बोलते हैं इसको, लिवरेज। हाँ लिवरेज खत्म है, तो यस। प्रॉब्लम फंड जिसके पास है वो ट्रेड कर पाएगा। हाँ अब अगर एफटीएमओ करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी पेमेंट लेने में। तो शायद देखो, बिटकॉइन पे लेंगे पेमेंट, और हम्म। फंड जो है उसमें मिलता है लगभग 10,000 से हाँ 5,000 डॉलर का तुम ट्रेड ले सकते हो। मतलब उसमें काफ़ी रूल होते हैं कि आपका ड्रा डाउन जो है 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता पर डे का, टोटल ड्रा हाँ डाउन 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, इस हाँ। तो वो कब स्टार्ट होगा सर आपका वो? अभी MP4 में
MP4 भी नहीं चलाया कभी, तो MP4 हम्म। चला रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे हाँ। चलता है। उसके बाद हम्म। देखता हूँ कि अब देखो, प्राइस जो है पुश करने की कोशिश किया, लेकिन वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम दिख रहा है हाँ। क्या हो रहा है वॉल्यूम में। सच बात। हाँ, और प्राइस प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी तो मतलब ऊपर जा रहा मतलब क्या है ये। है, प्राइस ऊपर। सेल। सेलिंग है। यस। यील्ड सपोर्ट कर रही है, तो सेलिंग कब कब तक नहीं होगी। 50 सेलिंग के तो नीचे दिखा, तक। नहीं हम्म। नहीं नहीं, स्टॉपिंग वॉल्यूम आएगा ना। हम्म। मतलब जब तक ये लाइन ब्रेक होके ऐसे वॉल्यूम नहीं बनेगी ना, मतलब यस। इस लाइन को ब्रेक करके एक स्टॉपिंग वॉल्यूम आएगा, हम्म। तब तक सेलिंग नहीं होगी। राइट। 5 मिनट का सर देखे तो शायद 12:40 की कैंडल सर देखो 5 मिनट में सर, वो स्टॉपिंग वॉल्यूम काउंट कर सकते हैं वैसे। यहाँ पे प्राइस क्या है, फ्लैट है ना ये, यहाँ पे देखो हम्म। मोस्ट फ्लैट है। तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम में लेना है या फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम में लेना है, यहाँ प्राइस देखो फ्लैट है ना। राइट। हाँ। ये देखो फ्लैट वॉल्यूम है ऑलमोस्ट, यहाँ भी फ्लैट वॉल्यूम, हम्म। यहाँ पे डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, स्टेप में दिख रहा है। हम्म। तो अभी क्या होगा देखना, मार्केट में एक स्टॉप हिट होगा, मतलब स्टॉप टारगेट करेगा मार्केट बुलिशनेस से। तो हम्म। रिटेल ट्रेडर सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा और फिर हम्म। नीचे। राइट। यील्ड जो है लीडिंग इंडिकेटर है, बहुत हम्म। सही प्रोजेक्शन देती है, पहले से बता देती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ वीवैप, वीवैप वीवैप का कोई काम है कि नहीं, ठीक है इसके बाद क्लोज कर देंगे। हाँ हाँ।
मिल रही है कि हो सकता है कि सेलिंग हो इससे।